Breaking from the broadcast for this mega CNN News 18 exclusive, Justice Sushila Karkiji is with us. She has now been chosen as the interim leader of the Gen Z, the first Chief Justice of the Nepal Supreme Court. Justice Karkiji, namaste. Your thoughts on the situation in Nepal and the responsibility that has now been entrusted to you. Yeah. Gen Z group, they have did the movement in Nepal, and they have told me that they believe on me, and I can do government of short time for the purpose of doing election. They have asked me, and because those boys and girls, young boys and girls, they asked me, they requested me, and I accepted this one. Congratulations on that, but it's a tough ask. Nepal right now does not have any government. There could be the threat of anarchy. You're somebody who's also long led the fight against corruption. So what will be your immediate focus, ma'am? Immediate focus is, first of all, the boys and girls who died in the movement. We have to do something for their sympathy, and we have to also do sympathy to. We have to show also cool their parents who are very much. They are in misery on the demise of their children. And next thing, there are so many their demand. One demand is successful, Prime Minister have resigned. That was the first demand of those people. And the next is they want to remove the corruption from the country. And there are other things, many things, but that can be, the other demand can be successful only in that position when there will be set up the government. You have also passed many verdicts. I was just going back, and you've been very strong, vocal against acts of corruption. Now, do you believe, was that the biggest demand of the Gen Z? What have they requested you to do? No, they have only asked me. I have not finally talked with them. Yesterday they requested me. Not only requested, but what happened that among them they voted in their association. Those girls and boys and the students, they voted on the name of the persons whom they wanted to. And they are saying that I got maximum vote. So they requested me, and they said, ma'am, you can't say that no. Anyway, we have to be successful after your help. So on that, when they requested me, I accepted that one. But Justice Karki, the situation in Nepal, it should not slip into anarchy. What will you appeal to the people of Nepal? And is there going to be a cessation of violence? Even the Supreme Court has been burnt and vandalized. Will all of that stop, ma'am? Yeah. That is very, very, miserable things, and many problematic that all the files of the cases are burned. Also, some documents of, the Man Palace, Singha Darbar Palace, are burned. Not only the files of Supreme Court are burned, also in the district court and the High Court's file are burned in the Tarai. And so many courts file are burned. The situation is tough, But one thing I want to tell you, I was born in 1952. Since then, I have seen the movement of, in 1960 in Nepal. And also one of the movement in 1990.
and again the movement in 2006 perhaps. Three movement I have seen, and there is always problem in Nepal, you know. जी. This time is also a problem. We would try to solve the problem after unitedly we will try to work only that. My expectation is that we would do hard work with these young boys and girls and students, with the young people. We will try to establish a new environment. That is only our effort. Only we try to strive to do the work. आपका भारत से भी कनेक्शन है, आप BHU में भी पढ़ी हैं. Yeah. I read in BHU. I have good impression. I still remember my late teachers. I still remember my late friends. So many I have friends. I still remember the river Ganga. Besides the Ganga, there was a hostel, and at night in the summer we were sleeping on the top of the house, and we used to look the Ganga, flowing Ganga. That is I remember. Justice Kharki, can you speak Hindi? Our Hindi viewers we have, तो वो भी आपसे कुछ जानना चाहें. Yeah, however, Hindi English mix. What is your expectation? No. I am the citizen of Biratnagar, you know. जी. Biratnagar is near to the border of India. It is. Only maybe from my house there is only of 25 mile far, and we are also going regularly to the border market, and I can speak Hindi, not better, but I can speak Hindi. Let me tell you question. हाँ, भारत से क्या उम्मीद करती हैं आप? और नेपाल में भी बहुत सारे भारतीय हैं जो अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा चिंतित हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत से हम लोगों का रिश्ता आज नहीं है, बहुत दिनों से। और गवर्नमेंट क्या है नेपाल का और नेपाल की गवर्नमेंट से क्या रिश्ता है वो अलग बात है, लेकिन नेपाल की जनता और भारत के जनता के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है कि बहुत अच्छा रिलेशन है। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे हमारे परिचित हैं, जिनको कुछ हुआ तो हमको आंखों में आंसू आती है जी। हमें इतना हमारा सद्भाव है, प्रेम है, वो लोग बहुत हम लोग को मानते हैं, प्यार करते हैं, ये हम जानते हैं। हमारे और भारत के बीच में, जनता के बीच में अच्छा संबंध है, हम जानते हैं जी। और एक्सपेक्ट तो ये है, इंडिया ने, भारत ने सभी समय पर नेपाल को सहयोग किया है, मदद किया है। अब ये बीच बीच में हम लोग बहुत नजदीक हैं, तो एक कहावत है, जब बहुत किचन में वो बर्तन बहुत एक साथ होता है, उसके बीच में कुछ आवाज निकलता है, वही है, ये रहता है। जब हम एक घर में रहते हैं या तो हम पास में रहते हैं तो क्या होता है जी जी जी। तो पर बट जस्टिस खड़की जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, मैं बस आपसे आपकी आवाज़, वी कैन लिसन टू यू। मैं जानना चाहूँगा, वहाँ काफ़ी सारे भारतीय हैं नेपाल में इस वक्त जो थोड़ा अपनी सेफ्टी को लेकर चिंतित हैं, उनको आप क्या कहेंगी? उनके परिवार यहाँ भारत में वो भी थोड़ा वरीड हैं। नहीं, उनको सेफ्टी तो अब तो काठमांडू में तो देखिए, मैं काठमांडू में हूँ जी। काठमांडू में तो अभी आर्मी ने जो था, कल रात में 1 बजे रात को एक जगह से कम से कम 8-10 माइल से मैं अपने घर में आई थी, तो बीच में हमें बहुत डर लग रहा था कि लोग वहाँ जो है एकदम पत्थर वत्थर लेके बैठे थे, लेकिन आज का दिन है वो शांत हो गया है। और अब प्रहरी जो है, पुलिस जो है वो नहीं था, लेकिन अब वो लोग आ गए हैं, अब उतना खराब नहीं है। अब ये जो होता है ना, ये कुछ इधर उधर का मास में बीच में कुछ न कुछ होता है, आपस में टकराव होता है, इस तरह का संघर्ष होता है, कुछ न कुछ तो असर होता ही है, सभी को असर हुआ है। अब देखिए 20 स्टूडेंट जो है
गर्ल्स स्टूडेंट, बॉयज स्टूडेंट मारे गए देखिए। जी कई तो सेकेंड डे भी मैं जब हॉस्पिटल में बच्चों को देखने गई थी तो वहाँ गोली चल रहा था। जी सेकेंड डे उस जी। दिन भी मारे गए। अब ये थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जिसको कुछ हुआ है उनको कम से कम उसको क्षतिपूर्ति देना चाहिए। उनको अभी भी वो लोग कहेंगे तो आर्मी बहुत कॉन्शियस है, जी आर्मी ने बहुत अच्छा से संभाल लिया है। जी। आपके साथ कुछ और भी नेता हैं, कुछ लोग हैं जो जुड़ेंगे इंटरिम व्यवस्था को संभालने के लिए? हमें नहीं लगता है कोई नेता जुड़ेंगे, क्योंकि मैं तो जज हूँ ना। जी, मेरा पर सिविल सोसाइटी मेरे से कुछ और समझ लोग होंगे जो नहीं। आपकी मदद करेंगे? हाँ, वो होंगे तो सोशल फील्ड से होंगे, या पॉलिटिक्स से। हमें लगता है पॉलिटिक्स से कोई नहीं रहेंगे। मैम, आपका कैमरा अगर ऑन करें तो हम आपको देख भी सकेंगे। आपका कैमरा अचानक से ऑफ हो गया है, पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपका अगला प्लान क्या है, रोड मैप क्या है, कुछ टाइमलाइंस हैं या भारत से कुछ मदद की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, मैं तो मोदी जी को तो नमस्कार करती हूँ पहले। जी मेरा आई हैव गुड इम्प्रेशन अबाउट मोदी जी। जी दूसरी बात ये है, अभी हमारा ये नाम प्रपोज किया गया है। जी। अभी हमारा कोई फिक्स नहीं है। हम्म अभी कोई फिक्स नहीं है। कल चेंज भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते कि कल हमारा ही हो जी। रहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं। हम्म हम लोग बातें करेंगे कि जब इंटरनेशनल मामला होता है, जब दो देश के बीच का मामला होता है, उसमें तो कुछ लोग बैठ करके एक पॉलिसी बनाकर ना बोला जाता है। इसलिए जी अभी आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ इंडियन लीडर्स। आई हैव व्हेन आई वाज देयर, जब मैं वहां पर थी, जी तो शरद जी तो हमारे भाई की तरह थे। अभी तो ये दुनिया में नहीं रहे। जी। और शरद मोहन जी यादव जी है, जी। मोहन जी अब भी हैं। हाँ, मोहन जी, ये मोहन लोग जी भैया। इनसे बहुत अच्छा रिश्ता है। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, फ्रेंड्स हैं। हम्म हम लोग अपना अपना ही भाई बहन की तरह हम लोग उनको मानते हैं। वो यहाँ आते हैं तो हम्म हम लोग से मिलते हैं, बातचीत होती है। हम्म हम लोग भी जब जाते हैं तो, और मेरे हस्बैंड जो है तो वो तो बहुत सारे दिन वहीं पर रहे हैं, जी भारत में ही रहे हैं। जी बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे उनका, जी बहुत सारा दोस्त है। जी। मिलना जुलना होता ही रहता है। जस्टिस खारकी जी, आपको अभी अगला आपके पास इमीडिएट टास्क क्या है? मैं जरा वापस आपसे जानना चाहूंगा कि इमीडिएट टास्क तो पहले तो देखिए, यहाँ तो पीस की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है। हम्म पीपल को ये हम नहीं कह सकते कि इकोनॉमिकल हम इतना चेंज लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। हम लोग का टारगेट होता है कि एक इलेक्शन करके, हम्म आम निर्वाचन करके, आने वाला जो है लीडर्स, हम्म पॉलिटिकल लीडर, उनके हाथ में हैंड ओवर करना है। फर्स्ट पर्पस तो यही है। जी और उसके बाद हम छोटा मोटा काम करेंगे। कितना टाइम मिलेगा हमको? 6 महीना या 1 साल से ज्यादा तो टाइम नहीं मिलेगा। हम लोग बहुत ज्यादा शायद ही कर सकते हैं, थोड़ा बहुत करेंगे। हम लोग ये ट्राई करेंगे जो अभी भवन ववन को वो किया गया है, जी ध्वस्त किया गया है, उसको कुछ मरम्मत के लिए हम कर सकते हैं। हमको हाँ लगता है कि इतनी ज्यादा हम नहीं कर सकते। जी बस एक फेयर एंड इलेक्शन जो होता है, एकदम नेपाल में अभी इलेक्शन जो है बहुत गंदी तरह से हो रहा है। जी उसको उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि फेयर इलेक्शन हो और ईमानदार नेता लोग आए। ये ना हो कि पैसा बांट करके कोई लीडरशिप में आए। यही हम लोग नहीं चाहते हैं। ये जी एक प्रयास होगा, सबसे जी इम्पोर्टेंट तो यही होगा। जी। लेकिन अगर पूरी तरह से नई व्यवस्था है तो क्या नई पार्टीज आएंगी, युवा क्या सामने आएंगे चुनाव लड़ने के लिए? आप कानून को समझती हैं, बिकॉज यू आर फॉर्मर चीफ जस्टिस, सो हाउ वुड यू वांट टू डू दिस व्यवस्था? क्योंकि कहीं ना कहीं जेनजी पुरानी व्यवस्था नहीं चाहता, पुराने नेता नहीं चाहता। जी, हम ये नहीं कह सकते किसी को हम चुनाव मत लड़ो, तो ये तो हम कह नहीं सकते। जी कोई पार्टी के रूप में, कोई दलीय रूप में, पार्टी के रूप में भी आ सकते हैं कोई। ये तो है, उनका अपना विचार है, उनका राइट है। वो आ सकते हैं, कोई बात नहीं है। जी और या तो वो अकेले भी लड़ सकते हैं चुनाव, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भी। वो उनका सब्जेक्ट है ये।
जी अब इसी बीच अभी जो इस किस्म का एक यहाँ पर एक ध्वंस हुआ है, वो ध्वंस के बीच में हो सकता है कोई नया पार्टी निकल के जी वो ताकतवर पार्टी बन के, यंग यूथ का पार्टी बन के कोई खड़ा होगा, जी तो वो ऐसे आ भी सकते हैं। या हो सके पुराने नेताओं ने अपना जो यंग जनरेशन है, जी पुराने नेता यंग जनरेशन है, वो जनरेशन यंग जनरेशन वो लोग कुछ सुधर के आएंगे, जनता को खुश रखेंगे, जनता का काम करेंगे, जनता का भलाई सोचेंगे, तो ये भी ठीक है। जी हमारा तो ड्यूटी तो बस आपको क्या लग रहा है, जी, 1-2 महीना लगेंगे, 3 महीना लगेगा चुनाव को करने के लिए, थोड़ा सा स्थिति को कंट्रोल करने में, या उससे पहले हो सकता है? चुनाव चुनाव करने के लिए तो देखिए लगेगा टाइम। एक तो आपने देखा है अभी जो जी 2 दिन में जो तोड़-फोड़ यहाँ भी नहीं हुआ है, बाहर भी हुआ है। जी ये राजधानी के बाहर भी हुआ है। जी अब वो समस्या है ना? ये जी तो सब एक टाइम तो लगेगा, 6 महीने, 1 साल तो लगेगा, जी लगेगा टाइम। हम्म इस बीच में लेकिन बात ये है कि हम लोग लंबे तक नहीं रहेंगे। आफ्टर ऑल आई एम ए जज। यस आई डोंट नो पॉलिटिक्स, यू नो। जी I work 40 years as a lawyer, राइट 31 year lawyer, and 10 years I work as a judge. राइट I do not have political knowledge. राइट So, I have not to fight being a politician. और ये मेरी उम्र भी नहीं है। मैं तो जल्दी से जल्दी चाहूंगी कि एक अच्छा निर्वाचन, स्वतंत्र, स्वच्छ। आपके जी यहाँ एक थे ना पहले, जी थे ना एक बहुत नामूद शेषन दक्षिण भारत के, टीएन शेषन जी उस एशियन सेशन की तरह हम लोग चाहते हैं कि चुनाव निर्वाचन करा दे, अच्छे अच्छे लोग आए, वो जी काम करे, जी जल्दी से जल्दी हैंड ओवर कर दे, यही रहेगा। जी हम लोग का कोई पॉलिटिक्स में रह के कोई स्वाद लेना तो नहीं है, खाना जी नहीं है वहाँ पे बैठ जी के। जी पर हम क्यों नहीं नहीं चाहे? आप भगवान सुनिए ना, भगवान मेरी पशुपतिनाथ उम्र तो आपको आराम लंबी कर, उम्र दे। सुनिए ना, जी जी मेरी जी उम्र तो स्वतः एक यानी कि आराम करने की उम्र है। नहीं, लेकिन एक आप, क्योंकि आप ट्रू ब्लू नेपाली हैं, आप नेपाल के इंटरेस्ट को सामने रखती हैं, आप चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। देखिए, नेपाल का सबसे बड़ा पर्यटन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, टूरिज्म। अब एयरपोर्ट्स बंद हो गए, इस तरीके का हो गया सिचुएशन, सो यू विल वांट दैट टू रिटर्न टू नॉर्मल एट द अर्लीस्ट। तो आर यू गोइंग टू गिव दैट प्रायोरिटी, मैम? एंड डू यू हैव सपोर्ट ऑफ द आर्मी एंड द पुलिस एंड ऑल ऑफ देम? जी बात ये है, आप सब दिखते हैं ना, आप जी यहाँ क्या कमी है, यहाँ क्या है, वो तो आपने देखा है। जी मैं आपको धन्यवाद भी दूंगी कि आपने इतना बड़ा समस्या नेपाल में आपने बता दिया। जी मैं तो आपको धन्यवाद भी दूंगी कि बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है। जी ये भी है, कम से कम अब देखिए सब विदेश में जाते हैं, यहाँ कृषि में कोई काम नहीं करता, यहाँ खाने के लिए लाले पड़े हैं, वो भी समस्या है। जी तीसरी समस्या है, वो तो हम लोग को वो भी देखना है। जी